اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بزرگ دوستو، میرے بھائیوں۔ اس ویڈیو میں سمیر نے بہت کوشش کری کہ کیسے بھی کر کے اس کا بھی ایمان چھین لوں، مگر الحمدللہ کامیاب نہیں ہو پایا، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے جو میرے مخلص بندے ہیں ان پہ تیرا کچھ زور نہیں۔ کیونکہ شیطان نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ سے، بولے میں دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آؤں گا، ان کی راہ ماروں گا اور تو ان میں سے کسی کو بھی شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور بہت سے مسلمان اس میں بیچارے لوگ کو پھنسا کے یہ کسی بھی طرح نہ سنویدھان کانسٹیٹیوشن کو اوپر لے رہے ہیں کہ بھائی تم سنویدھان کو مانو گے، آیت قرآن کی پیش کر کے بتا رہا ہے کہ تم سنویدھان کو مانو گے یا قرآن کو مانو گے، ایسا ویسا۔ تو بیچارے نا ان کے کہہ دے رہے ہیں کہ سنویدھان کو مانیں گے اور دھرم سے پھر جا رہے ہیں۔ ذرا سی بات پہ میرے بھائیو ایمان چھن جا رہا ہے تمہارا، غور فکر نہیں کر رہے۔ کوشش تو بہت کری اس نے میرا بھی ایمان چھیننے کی، مگر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان پہ تیرا کچھ زور چلنے والا نہیں ہے، تو ان کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ ہاں، ان میں سے بدراہوں میں جو تیرے پیچھے چل پڑے تو وہ ابھارتا رہے، ان لوگوں کو بہکاتا رہے۔ ان میں سے جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا ان سب کو اٹھا کے میں تجھ کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو چلیے ویڈیو پلے کرتا ہوں، یہ دوسرا پارٹ ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے یہ کون سی آیت پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ یہ لیجیے، بولو۔ اگر اس آیت کو فالو کرتے ہوئے کوئی کافر اور مشرکوں پر حملہ کرتا ہے تو آپ قرآن کو فالو کر رہے ہیں کہ وہ کر رہا ہے؟ مجھے ذرا سمجھا دیں کیا ہے اس آیت میں۔ بولو نا، آیت پڑھ کے سناؤ نا میرے کو، میرے پاس موبائل ہے بھائی، لیپ ٹاپ نہیں ہے۔ اسکرین پہ ہے نا، آپ پڑھ لیں، اسکرین پہ لگی، آپ تو عربی پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لیں۔ تھوڑا کلیئر نہیں آ رہا، پڑھ کے قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، جنگ کرو تم سن لیں، میں بتا رہا ہوں، جنگ کرو تم ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر یعنی قیامت کے دن پر، تو ان کے ساتھ تم جنگ کرو جو ایمان نہیں رکھتے، یعنی کہ مشرک اور کافر لوگ، اور نہ حرام ٹھہراتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو۔ اللہ کے رسول نے شراب حرام کر دی، وہ حرام نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول نے خنزیر حرام کر دیا اور اللہ نے، وہ نہیں مانتے۔ وہ اللہ کے رسول اور اللہ نے جو ہے شرک حرام کر دیا، وہ نہیں مانتے۔ بت پرستی حرام کر دی، وہ نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ جو ہے کسی اور کو خدا ماننا، کسی اور دین کو فالو کرنا حرام کر دیا، وہ نہیں مانتے۔ وہ کرتے ہیں یہ سارا کام، تو ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے، ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ اور نہ قبول کرتے ہیں دین حق کی تابع داری کو، یعنی کہ اسلام کی تابع داری کو، اسلام کے تابع نہیں کرتے خود کو، بلکہ کسی اور مذاہب کو فالو کرتے، کسی اور دھرم کو فالو کرتے، کسی اور گاڈ خدا کو مانتے، بھگوان کو مانتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اور ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی کہ اہل کتاب، تب تک، کب تک؟ تب تک جب تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے یعنی کہ تابع بن کر نہ رہیں۔ تو اس آیت کو فالو کرتے ہوئے ہندوستان پر ایک اسلامک تنظیم نے حملہ کر دیا، تم ان کے ساتھ لڑو گے یا ان کے خلاف لڑو گے؟ آنسر پلیز۔ نہیں، مجھے تمہاری دلیل نہیں، پہلے مجھے جواب چاہیے بھائی۔ کس کو ان کے خلاف لڑو گے کہ ان کے ساتھ لڑو گے؟ یار بھائی اچھا خاصا نیٹ ہے میرے نہیں، ارے تو پھر مطلب نہیں اڑایا تو پھر خاموش کیوں؟ جواب کیوں، پھر جواب کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ کس کو ان کے خلاف لڑو گے کہ ان کے ساتھ لڑو گے؟ ابھی تو پکچر شروع ہوئی ہے بھائی، رکو نا، میری دلیل تو باقی ہے نا ابھی۔ نہیں، مجھے تمہاری دلیل نہیں، پہلے مجھے جواب چاہیے۔ اس آیت کو فالو کرتے ہوئے جو آئے گا اس کے خلاف لڑو گے کہ اس کے ساتھ لڑو گے؟ اس آیت کو فالو کرتے ہوئے آئے گا تو میں اس کے خلاف لڑوں گا۔ کیوں؟ اور اس کی دلیل بھی میں دیتا ہوں، پہلے سن لو میری بات، اس کے بعد میں بات کریں گے ہم۔ ہاں، میں اپنی آیت آپ کو سناتا ہوں۔ سورہ ممتحنہ کی آیت ہے ورسز نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک منٹ میں کھولوں گا اسکرین پہ، تم جلیبی بہت بنا رہے ہو۔ ہاں، سورہ نمبر بتاؤ۔ ممتحنہ، ہاں سورہ ممتحنہ۔ یہ آیت پہ میرے بھائی بعد میں جائیں گے، مگر یہ جو آیت ابھی اس نے پیش کیا تھا نا، کیونکہ قرآن میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں جن کو یہ لوگ پیش کر کے ہمارے نان مسلم بھائی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اسلام سے روکتے ہیں تاکہ وہ لوگ اسلام میں نہ جائیں اور نفرت پھیلانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اسلام رکنے والی چیز نہیں ہے، ان کے جیسے بہت آئے اور بہت گئے۔ تو میں پہلے اس آیت کی تفسیر بتا دوں اپنے عالموں کے ذریعے سے۔ نان مسلم بھائیوں ذرا غور فکر کریے اور کس طرح یہ بندہ نفرت پھیلا رہا ہے۔ جو آیت اب اس نے ہم لوگ کو وہاں پڑھ کے بتایا تھا نا، تو میری بات میں اگر اس کی دلیل کچھ پیش کر دوں تو آپ لوگ میری بات نہیں مانتے، مگر ہمارے علماء سے سنیے اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. یہ آیت بھی فلسفہ دین کے اعتبار سے بہت اہم ہے. جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر نہ یوم آخر پر، جو حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا، اور نہ قبول کرتے ہیں دین حق کی تابع داری من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی، حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کرے اور چھوٹے ہو جائیں، نیچے رہے، تابع ہو جائیں. یہ فرق ہے جو کیا گیا ہے. مشرکین عرب کے لیے تو کوئی آپشن نہیں تھا، یا ایمان لاؤ یا گردن مار دی جائے گی، اس لیے کہ ان میں سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اتمام حجت بدرجہ آخر ہو گیا. لیکن یہ کہ باقی لوگوں کے لیے، نصارہ اور یہود کے لیے بھی اسی کے تابع بقیہ پوری نوع انسانی ہے، تمام انسان، پھر فارس کے لوگ تھے یا ہندوستان کے لوگ تھے یا اور تھے، ان سب کے لیے قانون یہی رہا ہے. کسی کے لیے یہ چیلنج نہیں ہے کہ تم یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے، اس کے بعد کسی کے لیے نہیں. یہ خاص وقت تھا اس قوم کے لیے اس عذاب کا کہ جس قوم نے ایک رسول کی دعوت کو رد کیا تھا. اب اس کے بعد کوئی رسول ہے بھی نہیں، موجود نہیں ہے، بنفس نفیس تو موجود نہیں ہے، معنوی طور پر ہے، وہ واقعتاً جو ہے مادی طور پر تو نہیں ہے. اس حوالے سے بقیہ پوری نوع انسانی کا معاملہ کیا ہے؟ ان کے سامنے یہ ہے کہ قتال ان سے بھی کیا جائے گا، جنگ ان سے بھی کی جائے گی، یہاں تک کہ وہ تابع ہو جائیں، اللہ کے دین کی بالادستی کو قبول کر لیں. لیکن اس کے نیچے وہ یہودی رہیں، وہ مجوسی رہیں، وہ ہندو رہیں، وہ سکھ رہیں، وہ پارسی رہیں، وہ جو بھی چاہے رہیں، انڈیویجول کو کسی کو اسلام لانے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا. اور یہ نہیں ہوگا کہ گردن اڑا دی جائے گی یا اسلام لاؤ. وہ معاملہ تھا مشرکین عرب کے لیے. یہ جو زمین و آسمان کا فرق، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہی وجہ ہے کہ پھر جب دور صحابہ میں اور دور خلافت راشدہ میں فوجیں نکلی ہیں صحابہ کی، تو 3 آپشنز دیتے تھے وہ. ایمان لے آؤ، تم ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے، تمہارے حقوق ہمارے حقوق برابر. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر ہیں تم جونیئر ہو، تمہارے حق کا برابر، بالکل برابر. اگر ایمان نہیں لاتے، تابع داری اختیار کرو، جزیہ دو، اور اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کرو. پھر تم یہودی رہو، مجوسی رہو، عیسائی رہو، نصرانی رہو، جو چاہو رہو، ہندو رہو، بدھ مت کے رہو، جو چاہو رہو. اگر یہ بھی نہیں گوارا، گویا کہ تم باطل کے نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہو، تو پھر تیسرا آلٹرنیٹو تلوار آئے گی میرے اور ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی، آ جاؤ میدان جنگ میں. 3 آپشنز. ان کے لیے، مشرکین عرب کے لیے بھی 3 آپشن بن گئے تھے 2 ہی، یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے. تیسرا آپشن یہ تھا کہ جزیرہ نما عرب چھوڑ کر جہاں چاہو بھاگ جاؤ، یہاں نہیں رہ سکتے. لیکن یہ اس میں امپلائڈ تھا نہیں، کلیئر نہیں تھا، اسپیلڈ آؤٹ نہیں تھا. لیکن ان کے لیے یہ دوسرا آپشن تھا، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، قتال کرو ان سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر نہ یوم آخر پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، نہ حرام ٹھہراتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، ولا یدینون دین الحق، اور نہ دین حق کو قبول کرنے کے لیے اور اس کی تابعداری کرنے کے لیے تیار ہیں، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے. ان سے بھی جنگ کرو حتی یعطوا الجزیۃ عن ید، یہاں تک کہ وہ دیں جزیہ ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور چھوٹے ہو کر رہے، اسلام کی بالادستی قبول کریں. نان مسلم بھائیوں، دیکھا آپ لوگوں نے کہ ہمارے عالم نے بھی اس بارے میں کیا بتایا کہ وہ حکم صرف اس ٹائم تک کے لیے موجود تھا جو آیت ہی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا رہا تھا اور ہندو مسلمان کے بیچ میں نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا. ابھی جو میں نے اس کو دلیل دیا تھا اپنی آیت سے، اٹک گیا اور لاسٹ تک نا میرے بھائیوں یہ نا اٹکا رہا اس آیت پر. دیکھیے میں پلے کرتا ہوں، چلیے. 60 ورس نمبر 7 بہت بہترین ہو گیا. ابھی کھول لیتے ہیں ممتحانہ کی 7. ارے بھائی شرم کر لے، 50,000 رکے. میں جو ہے 7 کر دیتا ہوں. جی جناب پڑھیں. قریب ہے خدا تمہارے اور ان میں سے تمہارے دشمن کے درمیان دوست. پہلے عربی ٹیکسٹ پڑھیں پھر ٹرانسلیشن کریں. عربی ٹیکسٹ آپ پڑھو نا یار بھائی تھوڑا. میں بھائی تھوڑا ویڈیو اسکرول کر کے بتاتا ہوں، سیدھا مین ٹاپک پہ آتا ہوں، کیونکہ یہ جب آدمی اٹکتا ہے نا تو پھر وہ جلیبیاں بناتا ہے. یہاں سمیر خان ہے نا پھنس گیا تھا بہت برا اس آیت کو جب میں نے اس کے سامنے پیش کیا، اور لاسٹ تک بیچارہ اسی پہ اٹکا رہا.
और मुझे हाँ अरबी तो क्या बोलते हैं, अरबी मेरी थोड़ी कमज़ोर है और उर्दू भी कमज़ोर है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदी और इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह है, इंग्लिश भी थोड़ा कमज़ोर है। थोड़ा क्यों अरबी में आपको नहीं आती? आपको नहीं आती अरबी पढ़नी? है खुदा तुम्हारे और उनमें से तुम्हारे दुश्मनों के दरमियान दोस्ती पैदा कर दे। और खुदा तो कादिर है और खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। जो लोग तुमसे तुम्हारे दीन के बारे में नहीं लड़े भिड़े, गौर से सुनना क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला इसमें, जो लोग तुमसे तुम्हारे दीन के बारे में नहीं लड़े भिड़े और न तुम्हें घरों से निकाले, उन लोगों के साथ एहसान करने और उनके साथ इंसाफ से पेश आने से खुदा तुम्हें मना नहीं करता। बेशक खुदा इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। खुदा तो बस उन लोगों के साथ दोस्ती करने से मना करता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की और तुमको तुम्हारे घरों से निकाल बाहर किया और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की। और जो लोग ऐसे उसे दोस्ती करेंगे वे लोग जालिम हैं। और वे जो उन काफिरों की बात मेरे भाई तुम कर रहे थे ना कि रसूल अल्लाह ने बोले आपसे, अल्लाह ताला ने उसमें कुरान में आदेश दिया, तो वो काफिर कौन थे? ये जो आयत आपने पढ़ी है अभी, हेलो मेरी बात सुने, ये जो आयत आपने अभी पढ़ी है इसके अंदर वो ट्रांसलेशन मौजूद नहीं है जो आप बता रहे हैं। तो आपने क्या ट्रांसलेशन पढ़ी? आपकी स्क्रीन पर एक लाइन की है, इतनी लंबी नहीं है जितनी आपने पढ़ी। क्या अजीब के अनकरीब ही अल्लाह ताला तुम में और तुम्हारे दुश्मनों में मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह को सब कुदरतें हैं और अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। बस इतना ही ट्रांसलेशन है इस आयत का। ये आगे कहाँ से पढ़ा है? अगली आयत में जाऊं? 8-9 पढ़ दो। हाँ अच्छा, सही पढ़े अभी तो ऐसा बोलो ना कि मैं अब अगली आयत पे चला गया। अभी पढ़ देना, पहली पढ़ दे। जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में हेलो सुने, जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं लड़ी और तुम्हें जिला वतन नहीं किया, उनके साथ सुलूक को एहसान करने और मुनसफाना भले बर्ताव करने से अल्लाह ताला तुम्हें नहीं रोकता, बल्कि अल्लाह ताला तो इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। इसके अंदर देश कहाँ से आ गया? मुझे देश समझा दे कहाँ से आ गया। अरे मेरे दोस्त, अभी तो जंग की बात हो रही थी, काफिरों की कत्ल की बात हो रही थी, देश की बात कहाँ से आ गई? मैं ये कह रहा, हेलो मेरे भाई वो देश के ताल्लुक से जो बात हुई थी पहले वीडियो में बताया ना मैंने, यूसुफ अलैहिस्सलाम किस तरह के बादशाह के कानून कॉन्स्टिट्यूशन में रह के उसका पालन कर रहे थे हमारे पैगंबर, और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की दुआ भी मैंने पहले पार्ट में बताया। तो अभी ये जलेबी बना रहा है। अभी मैं इस वीडियो के ना लास्ट में जाता हूँ और देखिए इस आयत में ये कैसा अटका। पेश करने दो, मुझे अपनी दलील तो पेश करने दो। हाँ करें। हाँ तो वो जो मैंने सूरह निसा की आयत बताया था ना 135, उसे भी पढ़ के सुनाओ जरा लोगों के बीच में, थोड़ा लोगों को पता तो चले कुरान क्या कहता है। ये सब आयतें तो तुम लोगों को सुनाते नहीं हो, सुनाओ जरा उसको भी, सूरह निसा की 135 आयत। ओके, तो अब आप इस आयत के ऊपर बात नहीं करना चाहते, मैं 135 पे चलूं? नहीं, मैं ये 2 आयत के ऊपर ही बात करूंगा। अभी तुमने इतनी सारी बात बोली, अभी मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा तो अगर आप इन दो आयतों के ऊपर बात करेंगे तो सूरह निसा पे क्यों जाना, फिर इन पे बात करें ना। नहीं, वो भी सेम इसी से ताल्लुक रखती है ना, तो वो भी थोड़ी इसको क्लियर कर देगी ना, इसलिए लोगों की समझ में आ जाए कि हाँ बंदा क्या बात कहना चाह रहा है। तो अगर मुझे मेरा हाई स्कूल का रिजल्ट देखना है तो मुझे पहले मेरा दूसरी क्लास का रिजल्ट देखना होगा। या ये समझ गया। सूरह निसा आयत 135 में क्या लिखा है वो लास्ट में मैं दिखाऊंगा, मगर देखिए आगे जाके क्या बात हुई हमारी। जो है नाप लेते हैं कि ये आयतें उस वक्त के काफिरों के लिए है और ये आयतें आज के लिए है। मुझे वो पैरामीटर, वो पैमाना, वो माप बता दो। वो माप है ना 23 साल का, वो माप और वो पैमाना ना 23 साल का है। कुरान को 23 साल लगा क्या? नहीं, वो 23 साल का पैरामीटर है। सूरह अनफाल जंग हो रही है, मैदान में आयतें नाजिल हो रही है कि भिड़ जाओ, लड़ जाओ काफिरों से, मगर वो उस टाइम के लिए है, ऐसा नहीं कि अब जाके सबसे लड़ते फिरो। और मैंने सूरह मुमताहना की आयत तुमको दिया ना, इसमें साफ क्लियर हो जाता है अल्लाह किन काफिरों से लड़ने को कह रहा है और किन से नहीं। इसमें अल्लाह साफ कह रहा है खुदा तुम्हें उन्हीं लोगों से लड़ाई करने को कहता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की। तुम्हारी इसमें ऐसा कहाँ लिखा है? एक मिनट, झूठ। मेरे भाइयों, मैंने डॉक्टर इसरार अहमद की भी वीडियो इसमें लगा के दिया कि वो सिर्फ उसी वक्त तक के लिए मौजूद था। मैंने यहाँ पे भी इसको बताया कि 23 साल कुरान होने में नाजिल लगा। अब ऐसा नहीं कि हम सब काफिरों को कत्ल करते फिरे। अब ये देखिए इसमें ऐसा क्या लिखा है, अब देखिए। हाँ सुनिए, बोला तुमने अभी तुमने झूठ बोला है। आयत के ट्रांसलेशन में तुमने ये कहा है कि खुदा तुम्हें उन्हीं काफिरों से लड़ने का हुक्म देता है जिन्होंने तुमसे लड़ाई की है। इसके ट्रांसलेशन में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? तुम मुझे पढ़ के बताएं। अब भाई ना ये ज़बरदस्ती की बात बता रहा है। इंशाल्लाह मैं लास्ट में आपको आयत सुनाऊंगा, आयत बताऊंगा। अब देखिए ये कैसी जलेबी बना रहा है। इस आयत पे अटक गया, जैसे गालिब को अटक गया था, साहिल को बुलाना पड़ा था, वैसे ये इस आयत में अटक गया। और इस आयत को मैं इंशाल्लाह अपने नॉन मुस्लिम भाई भी गौर से सुने और ऐसे लोगों की बातों में ना आया करें जो नफरत फैला रहे।
अधर्मी इंसान नॉन मुस्लिम भाई लोग को क्या हो गया, सनातनी को क्या हो गया कि अधर्मी की परिभाषा नहीं जानते ये लोग। अब जब भाई ईमान रहे ही नहीं, अपने धर्म से फिर गए, तो अब इन अधर्मियों का साथ दे रहे हैं। हालांकि हिंदू समाज में अधर्मियों को इतना बड़ा ऐसी ऐसी सज़ा देने की बात कही गई है ना कि पूछो मत। मगर हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी इनकी बातों में, इन अधर्मियों के साथ में बैठ के इनकी बातों में आ जा रहे हैं। इनको मालूम है, हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को, इनके आलिमों को अच्छे अच्छे से मालूम है। स्वामी जी से मैंने पूछा, जब स्वामी जी ने पूछा काफिर कौन होता है, मैंने कहा था अधर्मी को काफिर कहते हैं। बोले अच्छा, अधर्मी को काफिर कहते हैं। बोले अच्छा, तो और किसको कहते हैं? बोले अधर्मी की परिभाषा बताइए। स्वामी जी तो रटक गए थे कि अधर्मी की परिभाषा क्या होती है। तुम पढ़ दो ना, तुम्हारे पास सामने है ना। इसके ट्रांसलेशन में लड़ाई करने का हुक्म ही नहीं है कि तुम्हें किससे लड़ाई करनी है, बल्कि तुम्हें इसकी ट्रांसलेशन में 4 बार मैंने पढ़ दिया है। तुमने जो बताई, मेरी इज्जत नहीं करता, कम से कम अपने कुरान की तो इज्जत कर ले। मैं उसकी बोला 7 से फिर बोला 7 से पढ़, 7 हो गया, आ गया पर्सनल अटैक पर भाई, आ गया साथ। मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम म्यूट कर लो भाई। अगर मैं अल्लाह को, मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ, इस बार अगर आप बीच में बोले मिस्टर अब्बास, थोड़ा सा तो मेरा कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं। तो हम मुझ में मोहब्बत पैदा होने का सवाल नहीं है। रसूल अल्लाह के दुश्मन थे, उनके मुतालिक बात हो रही है। क्या अजीब, क्या के बोल रहा है ना, आम मुसलमानों के बारे में नहीं बोल रहा ना, उसको लोगों को उल्लू बना रहा है। तो मेरे भाइयों, सूरह वर्से मुमतहाना की वर्से नंबर 7, और मेरा नॉन मुस्लिम भाई जो भी है, अगर पढ़ना चाहे ना तो इसको जाके पढ़ सकता है। और सूरह निसा की 135 आयत भी मैं अपने नॉन मुस्लिम भाइयों के लिए एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, जरा गौर फिक्र करे। ये तो अधर्मी हो गया मेरे भाइयों, तो अधर्मी का तो कोई ईमान होता ही नहीं। हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी जानते हैं अधर्मी इंसान कैसे होते हैं, और अधर्मियों के बारे में हिंदू धर्म ग्रंथों में कितनी भारी भारी बात कही गई है। तो चलिए मैं अपनी आयत पढ़ के इंशाल्लाह मैं खत्म करता हूँ। देखिए, करीब है कि खुदा तुम्हारे और उनमें से तुम्हारे दुश्मनों के दरमियान दोस्ती पैदा कर दे, और खुदा तो कादिर है, और खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। जो लोग तुमसे तुम्हारे दीन के बारे में नहीं लड़े भिड़े और न तुम्हें घरों से निकाले, उन लोगों के साथ एहसान करने से और उनके साथ इंसाफ से पेश आने से खुदा तुम्हें मना नहीं करता। बेशक खुदा इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। तो मेरे भाइयों, यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हें दोस्ती करने से काफिरों से मना नहीं करता, उनके साथ में मना करता है जिन्होंने दीन दोस्ती करो। कहाँ लिखा है, मुझे ट्रांसलेशन में बताएं। अरे अल्लाह के बंदे, सुनना एक मिनट, सुन। अरे भाई, मुझे ये बताएं कि वहां उनसे दोस्ती करो, ऐसा कहाँ लिखा है? झूठ बोला तुमने, बार बार झूठ बोल रहे हो, अपने लफ्ज डाल रहे हो ट्रांसलेशन में। कितना झूठ मेरे भाई, अभी आप लोगों को पता चलेगा कौन झूठ बोल रहा है। बोलोगे, शर्म नहीं आती तुमको? अरे सुनना, क्या बात कर रहे हैं समीर, रुकना यार, क्यों बड़बड़ कर रहा है, बात तो पूरी करने दे, रुकना अभी। अरे भाई, मुझे लो, झूठ मत बोलो, बात करने दूंगा। झूठ बोलोगे तो सवाल पूछूंगा। भागा समीर, भागा। दोस्ती करने का ट्रांसलेशन कहाँ लिखा है? भागा समीर, भागा। दोस्ती करो, ऐसा कहाँ लिखा है? अभी शट अप इडियट, झूठ बोल रहा है। अभी मेरे भाइयों, इसके झूठ की पोल खुद ही खुल जाएगी, देखिए। हाँ, आप लोग गौर करिएगा। क्या उनके साथ सुलूक एहसान, यानी कि उन पर एहसान करने और मुनसफाना भलाई करने, यानी कि उनके साथ इंसाफ करने से अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता। दोस्ती कहाँ लिखा है अब्बास? दोस्ती कहाँ लिखा है? दोस्ती का वर्ड लिखा है, कहाँ लिखा है? तेरा तर्जुमा मान लेता हूँ, तेरा ही तर्जुमा नहीं, मेरा नहीं है, मेरा नहीं। क्योंकि भाई मेरा तो अकीदा है कुरान के ट्रांसलेशन पे भी, कि कुरान के ट्रांसलेशन में भी कुछ नहीं हो सकता। मैं बोल रहा हूँ उसको, मैं तेरा ही ट्रांसलेशन में मान लेता हूँ, चल उसी को पढ़ दे। तो खैर चलिए, अभी देखिए, अभी इसको पता चलेगा आप लोगों को दोस्ती कहाँ लिखा है, अभी पता चलेगा। मेरा नहीं है, तुम्हारे मुल्क में। ये देखो, अरे तेरा यार, ये देखो तो सुले के एहसान, अभी भाग मत यार। कौन सा खोल लूं यार? ये ले, जलंधरी ले ले भाई, जलंधरी ले ले भाई। अब इसने मौलाना फतेह जलंधरी का तर्जुमा खोला है, अभी देखिएगा इंशाल्लाह। हाँ, जलंधरी ले ले, ये ले, खोल 60 मुमतहाना। दोस्ती दिखा दे, बस दोस्ती दिखा दे भाई मेरे को, बस दोस्ती दिखा दे प्यारे भाई। जलंधरी का खोल। हाँ, चल, ये लो, खोल दिया। पढ़। हाँ, पढ़। ठीक है। अजीब, अच्छा जी, अजब नहीं कि खुदा तुम में और उन लोगों में जिनसे तुम दुश्मनी रखते हो दोस्ती पैदा कर दे, और खुदा अभी चल आगे पढ़। अबे भाई, क्या रहा है पहले सुनो। कि अल्लाह चाहे तो दोस्ती पैदा कर दे, पर ये नहीं कह रहा है कि दोस्ती करो, ये नहीं कह रहा दोस्ती करो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो डंगर? मैं निकाल दूंगा फिर स्ट्रीम से। चिल्लाओगे तो आराम से बात करो। चिल्ला क्यों रहे हो तुम?
हाँ, तेरी अखलाक से मालूम पड़ता है डंगर। मैं ये कह रहा इस्लाम से फिर गया तो तेरी बदजबान भी हो गई। अब्बास भाई, मैं ये कह रहा हूँ शांति से बात कर ले, मुझसे भाई, मोबाइल चिल्लाए से नहीं। स्विच ऑफ हो गया, माफी चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में जंग नहीं की और ना तुमको तुम्हारे घरों से निकाला, उनके साथ भलाई और इंसाफ का सलूक करने से खुदा तुमको मना नहीं करता। इसके अंदर दोस्ती का लफ्ज दिखाएं, कहाँ है? कहाँ है दोस्ती का लफ्ज अब्बास? अब्बास, मेरे भाइयों, ओके, अब्बास साहब फारिग, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इसने मौलाना फ़तेह जलंधरी का कुरान खोला और अब्बास भाई फारिग हो गए, अब्बास भाई बाहर हो गए और अब ये अपनी बकवास चालू कर दिया इसने कि देखिए झूठ। इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं जिसका कोई हद नहीं है। सिर्फ झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला चिल्ला करके बोलो, झगड़ा करके बोलो, लड़के बोलो, जब भी बोलो झूठ बोलो, झूठ बोलो और झूठ। तो अब्बास भाई अभी आउट हो गए तो अभी बोलते रहेगा। और ये इसने मौलाना फ़तेह जलंधरी का कुरान खोला तो इंशाल्लाह मैं भी खोल के दिखाता हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है। बेचारा बस यहीं तक अटक गया, आगे बढ़ा नहीं। जब इसने मौलाना फ़तेह जलंधरी का कुरान खोला ना कि दोस्ती का शब्द कहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए अब मैं भी मौलाना फ़तेह जलंधरी का आपको खोल के दिखाता हूँ। अब मैं तो यहाँ से आउट हो गया क्योंकि स्ट्रीम में अब मैं वापस आया नहीं, क्योंकि भाई बटन इनके हाथ में, जब चाहे जो भी चाहे कर सकते हैं। ये देखिए मेरे भाइयों, कुरान मजीद हिंदी मतन तर्जुमा मौलाना फ़तेह खां जलंधरी, ये भी मौलाना फ़तेह जलंधरी का कुरान है। अब इसमें सूरह मुमतहना की आयत में पढ़ के दिखाता हूँ। वो कह रहा है दोस्ती कहाँ लिखा है अब्बास, इसमें दोस्ती कहाँ लिखा है? मुनाफिक झूठ ना बोले, दोगला झूठ ना बोले, जब तक कुछ नहीं होता। मुझे झूठा बोल रहा था। तो खैर आप लोग खुद आयत देख के सोचिए और बताइए कि झूठा कौन। ये सूरह मुमतहना की आयत 7 में, जिसमें अल्लाह फरमाता है, अजब नहीं खुदा तुम में से और उन लोगों में से जिनसे तुम दुश्मनी रखते हो दोस्ती पैदा कर दे। और खुदा तो कुदरत वाला और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में जंग नहीं की और न तुमको तुम्हारे घरों से निकाला, उनके साथ भलाई और इंसाफ का सलूक करने से खुदा तुमको मना नहीं करता। खुदा तो इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। खुदा तो उन्हीं लोगों के साथ दोस्ती करने से मना करता है। क्या यहाँ क्या फरमा रहा है? खुदा तो उन्हीं लोगों के साथ दोस्ती करने से मना करता है। मतलब इनसे दोस्ती कर सकते हैं। और किन से दोस्ती करने को मना कर सकता है? जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की और तुमको तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की, तो जो ऐसे ऐसे दोस्ती करेंगे वे जालिम हैं। ये मौलाना फ़तेह जलंधरी का कुरान है, उसने भी खोला, बोले इसमें दोस्ती कहाँ लिखा है अब्बास, दोस्ती कहाँ लिखा है? तो मेरे भाइयों आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो इसमें दोस्ती कहाँ लिखा है। तो मेरे भाइयों, शैतान ना हमारी जान का दुश्मन ना माल का दुश्मन, शैतान हमारे ईमान का दुश्मन है। और मैं खूब जानता हूँ तुम इन्हें नसीहत करो, अल्लाह ताला फरमाता है तुम इन्हें से नसीहत करो या ना करो, ये मानने वाले नहीं हैं, मगर तुम उन्हीं शख्स को नसीहत कर सकते हो जो खुदा की पैरवी करे और खुदा से गए बाना और डरे। तो ये वीडियो मैं अपने मोमिन भाइयों के लिए बनाता हूँ, इन लोग के लिए नहीं बनाता। मुझे मालूम है कि ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह की बातों पर तो वही यकीन रखता है जो अल्लाह को दिल से गैब में ईमान पे जानता है। और अल्लाह खुद फरमाता है तुम इन्हें नहीं सुना सकते, तुम उन्हीं को सुना सकते हो जो अपने परवरदिगार पर यकीन रखते हैं, भरोसा रख सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मुसलमान भाइयों, जो भी मैंने ये वतन के ताल्लुक़ से मोहब्बत की बातें इस वीडियो में बताई, आप लोगों को हवाला दे के बताया सूरह यूसुफ़ का, सूरह इब्राहिम का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि परवरदिगार इस शहर को अमन की जगह बना दे, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए मोहब्बत की दुआ मांगी, सलामती की दुआ मांगी। क्या बोलते हैं, अपना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशन में रह के, दूसरे के संविधान में रह के उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर की और बादशाह के कानून को एकदम अच्छे से पालन किया। तो मेरे भाइयों, हमारा धर्म किसी को कानून को, किसी को कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करने से मना नहीं करता, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें हमारे धर्म का पालन करने से मना नहीं करता। तो खैर मेरे भाइयों, ये नफ़रत फैलाने वाली बात है कि काफिरों को जहाँ पाओ कत्ल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इंशाल्लाह मेरे भाइयों, कभी आप लोगों को कभी ऐसा सामना पेश आए ना, तो इन आयतों को याद रखना और उसके मुंह पे दे मारना। चलिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। और मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों, थोड़ा आप लोग तो गौर फिक्र करो मेरे भाइयों, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, बेशक एक दिन हम उसकी बारगाह में जाने वाले हैं। मेरे भाइयों, चंद सिक्कों की खातिर इन लोगों ने अल्लाह की आयतों को बेच दिया। अभी से नहीं, पहले से होता आया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में तो कितने बदलाव हो गए, वो तो अल्लाह का शुक्र है जिसने कुरान की जिम्मेदारी खुद ली है। चलिए अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।